to see in next 2 hours will be highly beneficial for you. That will help your mind to make a decision when you will be deciding your career in a year or two. And let me assure you that if you land up here, despite Professor Gupta telling you that you might be aspiring for IITs and NITs, that doesn't happen. You need not to bother. This college can boast of so many alumni who have done wonderfully well after passing out from here, and they are at the helm of affairs in many distinguished MNCs, public sector companies, government sector organizations and private organizations. You will not find a country where our alumni are not there. Every day there is an alumni meet somewhere, maybe in Houston, maybe in Brussels, maybe in Germany, somewhere in Germany, London. Every day, 365 days, we have an alumni meet. Tomorrow there is going to be an alumni meet at Indore. Around 60 alumni are meeting. So you will find that almost in 100 plus countries our alumni are there. Chandrayaan 2. Have you heard about it? Yes, sir. 12 engineers who have become scientists in ISRO have contributed in that project. Have you heard of Tesla? Yes, sir. What is it manufacturing? Electric vehicles, isn't it? The head of supply chain, global supply chain head is Rahul Jaiswal, who has passed out from this college. Mahindra Thar, have you seen? Yes, sir. Mahindra Thar is designed by one of our alumni. I can give you n number of examples. If I start giving one by one, there are many CEOs, many chief engineers, many even politicians. We can boast of 5 विधायक from our college. आकाश विजयवर्गीय का नाम सुना होगा आपने, अभी वो विधायक नहीं रहे. लेकिन higher studies, so not many aspirants were there. That's why the number is there. Many students from our college, they opt for higher studies. They go for MTech or ME after qualifying GATE, Graduate Aptitude Test in engineering. And some of them they aspire to go for IIMs, MBA. So for that exam is CAT. So you must be aware what after graduation. The job is only one of the aspects after doing your engineering. Your further studies motive can also be fulfilled. Then some of the students also go for MS from different countries like US, Germany, UK, Australia, etc. So that way, with the limited intake, we are able to place almost everybody who is eligible in various either companies or in institutes of reputation and excellence all over India and abroad also. So that way we have a very good track record. We have a very strong alumni association. Almost 10,000 alumni are working in various domains, and we have a close relationship with them. Every year in the December month we have an alumni meet. This year it is going to be organized on 29th of December because all over the world Christmas holidays are there. So many students, previous students I must say, they would like to visit our college. So this alumni base is helping us in getting placement, internship, etc. One initiative from one of the distinguished alumni, Mr. Puneet Bhatnagar, who is a creative head in an advertising company, who has also written some songs in films. He has also worked with Amitabh Bachchan in KBC and many more projects he is doing in Bombay. He is conducting a particular talk show which is known as Samvad, Gesu Samvad.
Our college used to be called as GESU, Government Engineering College Ujjain. अभी ये UEC हो गया. Essentially it was GESU. So GESU has interviewed our distinguished alumni. उसमें आप देखेंगे कोई कंपनी का CEO है, जिस राहुल जायसवाल के मैंने आपको एग्जांपल दिया, या जिस दिनेश अग्रवाल का मैंने आपको इसरो के साइंटिस्ट का एग्जांपल दिया, उन सब के एक डेढ़ घंटे के इंटरव्यूज मिस्टर पुनीत भटनागर के साथ में YouTube पर अवेलेबल है. So if you spare some time, you will find a very good feedback from our alumni. Essentially, there will always be a question in those 100 interviews. How do you feel being a GESUite? And every alumni takes lot of pride in saying that it was my fortune, I was fortunate enough to have gone through 5 years of rigors or 4 years of rigors at Ujjain Engineering College. And Ujjain Engineering College has shaped my personality, it has shaped my career, and they almost give all the credit to our college. So that's a wonderful feeling as a teacher. I particularly have a very strong belongingness to this institute because I passed out from this institute itself in 1989. So I am a graduate 1989 mechanical engineering. मैं अपनी कहानी सुना देता हूँ, आप 99 एल्यूमनाई की कहानी सुनना, मैं अपनी सुना देता हूँ. I passed out in 1989 and I joined Indian Air Force as commissioned officer. So for 6 years as short service commissioned officer, I worked in Indian Air Force. I became pilot officer, then flying officer, flight lieutenant, and I was working in surface to air missiles. So people used to ask me, have you flown aircraft any time? I said no, my job is to bring them down. मिसाइल उड़ा से प्लेन को गिराने का काम था, उड़ाने का काम नहीं. I worked on Russian missile SAM, surface to air missile SAM-3, Pechora. It is called in Russian language. And after that, I appeared in PSC and got selected as lecturer here. After doing my initial 4-5 years, I went on to do my MTech from IIT Delhi in Industrial Engineering and Management, and I topped there. I have a gold medal from IIT Delhi with 9.7 CGPA. After that, I went on to do my PhD from IIT Delhi in Supply Chain Management. Then coming back here, I was director of one of the private colleges here in Mahakal Institute of Technology and Science for 1.5 years. And now I am holding so many portfolios. I am Dean R&D, I am Training and Placement Officer, I am PRO, I am head of one of the department, and many more. So you can see that in my career, wherever I tried to put my hand, I got success. And as a true GESUite, I also give entire credit to this particular college because there are so many hardness, there are so many hardships, there are so many challenges when you study here, and those challenges, those hardships make you tougher. An engineer has to be tough. When we studied in this college, there was no computer science. So every engineer has to work in field, whether he is a mechanical engineer, electrical engineer, or civil engineer, or chemical engineer. So you have to be very tough. I have worked in Indian Air Force where the temperature was 57 degrees centigrade. 52 degree outside, and in Arjun tank, I was sitting in Arjun tank, the ambient temperature at that particular time was 57 degree centigrade. सूरतगढ़ के रेगिस्तान में हमने काम किया, जहां पे रेत का टेम्परेचर 71 डिग्री था. उसके ऊपर जूते रखते थे तो वो जूते में से ऐसा लगता था कि तवे के ऊपर आपने पैर रखे हो. I worked in that particular condition. So mechanical engineer, civil engineer, chemical or electrical engineers have to be tough. अब कंप्यूटर इंजीनियर आ गए हैं जो एसी एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर लेते हैं, लेकिन सारे तो उतने लकी नहीं है कि सबको कंप्यूटर में एडमिशन मिलेगा. वी हैव ओनली लिमिटेड 60 सीट्स इन कंप्यूटर साइंस. हमारा जो इंटेक है थोड़ा उसके बारे में मैं बता देता हूँ. सर मेरे पास कितने मिनट में शाम तक बोल सकता हूँ?
हाँ, तो आई विल टेक 5 more minutes. Okay. तो आप ये समझें कि जो दूसरी ब्रांचेस में एडमिशन होते हैं वो ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पे जेई मेंस क्लियर बच्चे नहीं आ पाते, लेकिन 3 ब्रांच हमारे यहाँ पे हैं मोस्टली: कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कुछ हद तक केमिकल, कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे जेई मेंस क्लियर रहते हैं और जेई एडवांस देने के बाद अगर उनका सिलेक्शन एडवांस में नहीं होता है, जैसा सर बता रहे थे कि आईआईटीज और एनआईटीज के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन बाकी जो ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, उसमें भी सारे बच्चे वो आते हैं जिन्होंने जेई मेंस में अच्छे स्कोर किए, भले वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, पर स्कोर उनका परसेंटाइज जो है वो रीजनेबली हाई रहता है। अभी कुछ 1-2 साल में कुछ सीटें जो बाद में वेकेंट हुई, उसमें हमारे पास में कुछ कैंडिडेट ऐसे आए जो जेई मेंस के थ्रू नहीं आए, सिर्फ 12वीं पास करके जो होते हैं वो आ जाते हैं, बट दैट इज अ रेयर फिनोमेना ओवर हियर. For past so many years, every seat of Ujjain Engineering College is filled. You might have seen in the private sector, so many private colleges are there which are struggling to get their seats filled. जो दुर्गति इंजीनियरिंग कॉलेजेस की पिछले 10 सालों में हुई, वैसा भूतो न भविष्य की, ना आगे होना चाहिए, ना पहले कभी हुई थी. और गवर्नमेंट टेकिंग ए डिसीजन दैट वी विल हैव मोर देन 50 मेडिकल कॉलेजेस. भगवान रक्षा करे डॉक्टरों की, मैं नहीं बोल सकता. When you increase the seat, the quality of input decreases, obviously. Demand and supply. If the supply is less and demand is more, you will get higher price. But if the demand is less and supply is more, what will happen? Prices will go down. So the prices of engineers have went down in past few years just because so many engineering colleges have cropped up. मशरूमिंग ग्रोथ इसको बोलते हैं. जैसे कुकुरमुत्ते उग जाते हैं, ऐसे कॉलेज उग गए. 30-35 तो इंदौर में हो गए, 30-35 भोपाल में हो गए, अपने उज्जैन में ही 5-6 कॉलेज. तो क्या इतना पोटेंशियल है? एक ऐसा बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है, मैथमेटिक्स में स्ट्रगल कर रहा है, फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहा है, उसको भी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो फिर वो आगे भी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री तो हम थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, बाकी मैथ्स एंड फिजिक्स ये सॉलिड बैकग्राउंड जिन बच्चों का होता है, दे आर लाइकली टू एक्सेल इन इंजीनियरिंग एजुकेशन. इसके अलावा एक फील्ड और है कि हमारे कुछ विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का भी काम किया है और दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट. मिस्टर अतुल जैन का नाम आपने सुना होगा, जो उज्जैन के काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो डेमलर, क्रिस्लर और अमेरिका की और भी ऑटोमोबाइल कंपनीज को उज्जैन से पार्ट्स बना के भेज रहे हैं. ठीक है. एक मेटल फोर्जर्स करके कंपनी है मक्सी रोड पे. विष्णु जाजू जी का आपने नाम सुना होगा, श्री पॉलीमर्स और पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं. विष्णु जाजू इज अवर एल्यूमनाई. इंदौर में एक मैक्स प्रो करके कंपनी है बेंगलोर में, उसके जो मालिक हैं वो हमारे यहाँ के पास आउट है. तो ये भी एक फील्ड है. अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल है और बहुत जल्दी हमारे कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर भी आने वाला है. तो ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग करने के साथ साथ अपने व्यवसाय या अपने स्टार्टअप आजकल नया शब्द है, आप जानते हैं, स्टार्टअप का मतलब है टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन इंडस्ट्री या सम इफर्ट. जैसे ओयो है या आपने ओला का नाम सुना होगा, ये सब स्टार्टअप्स थे. शुरुआत में 10-20 हजार की पूंजी से किसी ने इसको चालू किया, आज करोड़ों का एम्पायर हुआ. तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे सेंटर है. इंक्यूबेशन सेंटर जल्दी चालू हो जाएगा. इंक्यूबेशन सेंटर एक इस तरीके का सेंटर होता है जहाँ 2 साल तक आप फ्री में सारी सुविधाएं ले सकते हैं. आपका एक ऑफिस होगा, वहां से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं. एंड व्हेन यू गेट योरसेल्फ एस्टेब्लिश्ड इन दैट बिजनेस, then after 2 years you will migrate and take your own space in the commercial buildings. So these kind of facilities are there. अभी आप कॉलेज को विजिट करेंगे. कॉलेज इज ए टिपिकल गवर्नमेंट कॉलेज. तो अंदर जाके थोड़ी आपको निराशा होगी. हमारी बिल्डिंग बहुत पुरानी है. हम लोग कितने साल पुराने, 56 साल पुराने. आपके किसी भी टीचर की शायद एज 56 साल नहीं होगी, सब यंग लग रहे हैं मुझे. ठीक है. I was born in 1967. This college was born in 1966. तो ये कॉलेज मुझसे भी बड़ा.
तो उम्र के साथ जैसे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, हमारे कॉलेज की बिल्डिंग पे भी झुर्रियां आ गई। अब जब झुर्रियां आ जाती है किसी महिला की, तो हम उसे मेकअप के लिए कहाँ भेजते हैं? ब्यूटी पार्लर। तो हमने बाहर से एक ब्यूटी पार्लर वाले को बुला के कॉलेज की बिल्डिंग को चकाचक करवा दिया, लेकिन अंदर से नहीं है अभी। तो आप जाएंगे, देखेंगे, कुछ अगर आपको क्रैक्स नजर आए, कहीं प्लास्टर उखड़ा दिखे, कहीं सरिये नजर आए, तो ये मत मानिए कि हम इसको करवा नहीं सकते। हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में कैसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, इसलिए उनको छोड़ा हुआ है। So with these words, I once again welcome you all, and I hope that you will have a fruitful time, and whatever scheme sir has decided, you will be probably divided into some batches, and then you will be roaming around. Feel free to ask questions. जितना आप क्यूरियोसिटी नहीं है कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट। अभी आप जाएंगे तो एक भारतीय वायुसेना का एक विमान खड़ा हुआ है जिसमें मैंने काम किया, ये MiG-23 विमान, और इसका इंजन जो है हमारी लैब में रखा हुआ है। तो इसको भी देखिए, 2-4 सेल्फी खींच सकते हैं आप उसके पास। और मैकेनिकल की लैब में जब जाए तो जरूर पूछिएगा कि वो इंजन का कहाँ रखा है, जहाज का इंजन कहाँ रखा है, उसको हम देखना चाहेंगे। टर्बोजेट इंजन है। एनी अदर क्वेश्चन? सबसे भी हो आपका, डीन सर से या अपॉइंटमेंट हुआ है, तो सबसे पहले वो एक फिगर दिखाते हैं कि कितना जो है वो लैब पर एनम में हुआ है। तो अगर आपके कॉलेज की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए आप बता सकते हैं। थैंक यू सर। Where every placement record has been put, and the companies and along with the CTC they are offering. तो जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको हर कंपनी के नाम के आगे ये लिखा होगा कि उन्होंने कितने के ऑफर दिए। जैसा मैंने आपको बताया है कि वी आर नॉट बोस्टिंग ऑफ वेरी हाई पैकेजेस, क्योंकि अगर आप देखें ना पूरे इंडिया में 3 कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। वन इज IITs, देन एक NIT जो करीब 30-32 हैं, और उसी में IIITs आते हैं, और तीसरे लेवल पे फिर हम आते हैं स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और चौथे नंबर पे आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। तो कैरियर शुरुआत करने पे हम मदद करते हैं, वो फिगर सर अवेलेबल है बाहर स्टैंडिंग में। एनी अदर क्वेश्चन? देखा है, मतलब पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में या कभी-कभी अखबारों में भी पढ़ा है या फिर टीवी पे देखा है कि जो मेघ है वो ज़्यादातर क्रैश हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने मतलब कई बार, एंड वो हर बार मेघ ही होता है। तो क्या ऐसा कोई टेक्निकल इश्यूज है मेघ के साथ में कि लगभग मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेघ ही होते हैं और कई पायलट्स जो है वो मारे जाते हैं? हाँ सर, स्कूटी चलाती हूँ। कितने साल पुरानी है आपकी? मेरी तो ज़्यादा पुरानी नहीं है। कितने फिर भी? लगभग 5 years. Okay. What if I give you a scooty 25 years old? So that is the reason, sir? Yes, ma'am. Exactly. That is the reason, because I mean I will not make a political statement. हॉस्टल और सारी फैसिलिटी हमको इनको हॉस्टल पे देते हैं कैंपस जी। तो क्या अपने कॉलेज में जो एडमिशन अपन लेंगे तो उसमें हॉस्टल की फैसिलिटी और जो बच्चे हैं उनकी फीस का क्या प्रोविजन होगा? सर देखिए, फीस, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैव ऑल काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। जो लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको जो भी फीस वेवर ही मिलता है, या करीब 30,000 रुपए की उनको स्कॉलरशिप हर साल मिलती है, वो है एप्लीकेबल। उसके अलावा आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय में भारत सरकार आपकी केयर कर रही है और मिनिमम फीस में आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम इज विद अस। कोई आप बता सकता है कि हमारी साल भर की फीस कितनी होगी? एक अंदाज कोई भी बच्चा बताए कितनी होना चाहिए फीस हमारी? आपको ये बता दूं, उज्जैन के सेंट मेरी में LKG की फीस 50,000 रुपए। अब आप इसके बाद अंदाजा लगाइए कि हमारी फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर की फीस कितनी होगा। वाइल्ड गैस एनी अनुमान लगाइए। 1 लाख पर ईयर मींस 4 साल के 4 लाख, और एक में किसी ने कुछ और बोला, चलिए 22,500 रुपए हमारी सालाना फीस है। 1 लाख से कम में
90,000 में हम 4 साल की पढ़ाई करवाते हैं। इट इज हाईली सब्सिडाइज्ड सर। अगर इस फीस में हमारे 4 प्रोफेसरों की भी तनख्वाह देना मुश्किल हो जाए। बीइंग ए गवर्नमेंट कॉलेज हमारी तनख्वाह सरकार से आती है तो हमें उसकी चिंता नहीं है। तो हाईली सब्सिडाइज्ड है। हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए 3 है। ऑलमोस्ट एवरी गर्ल हु कम्स टू अस विल गेट ए सीट इन हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल हमारा जो एक बहुत पुराना था उसको हमने 2 साल पहले अभी देख रहे हो सारे एपरेटस हैं। ये एक जो एपरेटस देख रहे हो ये ट्राइएक्सियल टेस्ट, ठीक है। ये ट्राइएक्सियल टेस्ट की सॉइल की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक कोहेजन, एक डिग्री ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 5 C और 5। उसके बेस पे हम उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं, फॉर्मूला है उसके हिसाब से निकल जाता है। ये आप इधर देख रहे हो ये परमेबिलिटी का है। सॉइल जो सॉइल है उससे कितना पानी निकल के पहुंच जाता है। जितनी सैली सॉइल होगी उतना ज़्यादा पानी मिलेगा और जितनी क्ले की सॉइल होगी उससे कम पानी मिलेगा। तो उससे हमको ये पता लग जाता है कि ये सॉइल परमिएबल है कि इम्परमिएबल है। अब वो स्ट्रक्चर कैसा है, यदि आप मान लीजिए डैम इस टाइप के डिजाइन करना होता है टेस्टिंग के लिए काम आते हैं। तो जो मशीन आपको ये कंप्रेसिव लोड चेक करने की होती है। हम जब भी कंक्रीट बनाते हैं कंक्रीट के सैंपल बनाते हैं इस टाइप के क्यूबिकल सैंपल तैयार करते हैं। इन क्यूबिकल सैंपल को हम टेस्ट करते हैं सीधे मशीन के अंदर निकाल लेते हो और फिल्ट्रेट करके तो वो एक्सट्रैक्शन कहलाता है। पार्ट ऑफ आगे जाके हमारी लाइफ में हम जब माध्यम से शुरुआत करते हैं वहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग का उपयोग शुरू हो जाता है। और प्रैक्टिकल करवाना पड़ता है बच्चों को। इधर डीसी है उधर एसी। चलो